غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ السلام علیکم گائز، آج 10 دسمبر ڈڈیال آزاد کشمیر میں ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک ریلی کا انعقاد کیا گیا، جس کا مقصد یونائٹڈ نیشن کی مسلمانوں پر ظلم کے خلاف خاموشی اور تنویر احمد کی غیر مشروط رہائی۔ دوستو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ کشمیر جل رہا تھا، کشمیر جل رہا ہے، کشمیر جل رہا تھا، کشمیر جل رہا ہے۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ عرض کشمیر پر ظلم کی انتہا، چار سو شام غم کو بکو کربلا۔ روز و شب ظلم، شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھس کر سرے راہ گزر ظلم ہے۔ روز و شب ظلم، شام و سحر ظلم ہے، گھر میں گھس کر سرے راہ گزر ظلم ہے۔ بچوں بوڑھوں خواتین پر ظلم ہے، لفظ محدود ہے اس قدر ظلم ہے، لفظ محدود ہے اس قدر ظلم ہے۔ قاتلوں کے مقابل ہے سب۔ مودی کتا، مودی کتا، اسلامی قتل، انسانی قتل، مودی کتا، جرم کرو بیان کرو، تنویر کو رہا کرو، جرم کرو بیان کرو، تنویر کو رہا کرو، تنویر کو رہا کرو، تنویر کو رہا کرو۔ انسانیت کا قاتل، انسانیت کا قاتل، شرم کرو، حیا کرو، تنویر کو رہا کرو، مودی کتا، تنویر کو رہا کرو، تنویر احمد کو رہا کرو، تنویر احمد کو رہا کرو۔ کشمیر جل رہا تھا، کشمیر جل رہا ہے۔ اقبال کو بتاؤ جو خواب تو نے دیکھا، اقبال کو بتاؤ جو خواب تو نے دیکھا۔ تنویر کو رہا کرو، غرضوں پہ چل رہا ہے وہ آشیاں تو سوری، غرضوں پہ چل رہا ہے۔ کشمیر میں ظلم نہیں دکھائی دے رہا، برما میں ظلم نہیں دکھائی دے رہا، فلسطین کے مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ انسانیت کے بڑے علمدار بنے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے میرے خیال میں یہ شرم و حیا کا دن ہے۔ تنویر صاحب کا معاملہ ہے، اس میں کوئی انسانی حقوق کا ادارہ ان کی خاطر آواز بلند نہیں کر رہا، اور ہماری عدالتیں جو ہیں یہاں، ان کا تو ستیہ ناش ہو گیا ہے نا۔ ایک کون سا ایلیگیشن تھی ان کے اوپر جو آج تک سپریم کورٹ سے بھی ضمانت نہیں ہوئی، چھوٹی عدالتوں سے بھی ضمانت نہیں ہوئی۔ تو گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو تھوڑا سا سوچنا چاہیے ہماری عدالتوں کو کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ جس ملک میں وہ کہتے ہیں نا کہ کفر کا نظام چل جاتا ہے، ظلم کا نظام نہیں چلتا، یہاں ہے ظلم کا نظام ہے۔ تو ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے، اور انسانی حقوق کے دعوے داروں کو کشمیر اور مسلمانوں پر جہاں کہیں بھی انسانیت پر ظلم ہو رہا ہے وہاں ان کو دیکھنا چاہیے۔ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج 10 دسمبر کے حوالے سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں کہیں بھی لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اس پر عالمی عدالت UN کو سٹینڈ لینا چاہیے، اور خاص طور پر مسلمانوں پر کشمیر میں، فلسطین میں، برما، افغانستان اور دیگر دوسرے
जिस जगह भी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है हमें इंसाफ चाहिए। ख़ास तौर पर कश्मीर, दो मुल्क जो गासिब हैं वो हमारे खित्ते पर, हमारी रियासत पर कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं और इस टाइम पीरियड को तकरीबन 70 साल गुजर गए, लेकिन आज तक जो है ना कश्मीरियों पर जुल्म हो रहा है, जुल्म और सितम हो रहा है। आज तक हमें 70 सालों में इंसाफ नहीं मिला। मेरी पुरजोर अपील है, गुजारिश है कि जल्द अज जल्द कश्मीरियों को आके खुदरादियत दिया जाए और कश्मीरी अपना फ़ैसला खुद करें कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं या खुद मुख्तार रियासत कायम करना चाहते हैं। इसके अलावा जो डडियाल झंडा केस तनवीर अहमद के हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि तनवीर अहमद एक बागैरत कश्मीरी है, उसको जल्द अज जल्द गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि हमारा अदालती निज़ाम बिल्कुल फेल है। मैं ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म राजा फ़ारूक हैदर साहब से अपील करता हूँ कि बराए मेहरबानी इस पर नज़रसानी करें। आप आज़ादी की तो बातें बहुत करते हैं, आप कभी बगावत पर उधर आते हैं, कभी जो है ना हेलीकॉप्टर पर उधर जाने की बातें करते हैं, ये किया वो किया। मोहतरम, यहाँ जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसको भी तो देखें ना। सिर्फ इंडिया तो नहीं कर रहा, मोदी तो कुत्ता है, वो हम भी मानते हैं, लेकिन यहाँ जो जुल्म हो रहा है उस पर भी नज़रसानी करें। बराए मेहरबानी तनवीर अहमद को गैर मशरूत तौर पर रिहा किया जाए। बस शर्म करो या करो। कश्मीर जल रहा था, कश्मीर जल रहा है, कश्मीर जल रहा था, कश्मीर जल रहा है। मिल्लत को मिले नग़मों पे नाचने की आदत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10 दिसंबर जो कि इंटरनेशनल दुनिया में एक रूल बना था 1949 ह्यूमन राइट डे, जिसको बरतानिया में बहुत इज़्ज़त से मनाया जाता है और मिलियन बिलियन एयर लोग ऐसे हैं जो इसमें फ़ंड डालते हैं, जिसमें हर मुल्क इस चीज़ का हिस्सा ले रहा है सिर्फ़ और सिर्फ इंसानी नाम पे। इंसानियत बिक रही है जो शर्म का मुकाम है हमारे लिए। और आज कोविड-19 की वजह से हमने ये छोटा सा एक प्रोग्राम किया है और स्पेशल बिलखुसूस तनवीर अहमद के हवाले से हम निकले हैं। और इंतहाई अफसोस है जो हमारी आला बालातर अदालतों ने उनके जो केस में जैसे जैसे उन्होंने फ़ैसले किए हैं वो शर्मनाक फ़ैसले हैं, इंतहाई नाकाबिल कबूल हैं। और मैं अपने आज़ाद कश्मीर के जो हुक्मरान हैं, आला हुक्मरान हैं, उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि खुदारा एक दिन आपने जान देनी है, एक दिन आपने मर जाना है। हक़ और सच हमेशा ज़िंदा रहता है, बातिल कभी ज़िंदा नहीं रहता। और इसके साथ मैं कुछ बताना चाहता हूँ वो आम बातें जो तनवीर अहमद के हवाले से आज उनकी डेट थी, आगे नेक्स्ट 22 तारीख पड़ी है। जो सिविल अदालत है उन्होंने 22 तारीख डाली है। जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया है वो हमने पढ़ा है, लेकिन उस फ़ैसले में हमें अभी तक ये नज़र नहीं आ रहा कि उनको इतना टाइम 3 महीने रखने की कोई माकूल वजह नज़र नहीं आ रही। जो उनके साथ सफ़ीर अहमद था, अगर कानूनी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो सफ़ीर अहमद की सज़ा 7 साल बनती है और तनवीर अहमद की सज़ा जो उन पर सेक्शन लगे हैं वो 3 साल बनती है। हैरान कुन बात है, सफ़ीर अहमद की बेल हो गई है और तनवीर अहमद की बेल नहीं हुई। ये एक सवालिया निशान है पूरी अदालतों के लिए। वो उनको गौर करना चाहिए, अपने इन फ़ैसलों पे नज़रसानी दौड़ानी चाहिए कि हम किस रुख की तरफ जा रहे हैं। जो गासिब हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हमें हर डायरेक्शन दे रहे हैं, आपने ये करना है, आपने ये करना है, हमने आपको कश्मीर आज़ाद करा के देना है। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों, कश्मीर हमें किसी ने आज़ाद करवा के नहीं देना। हमारे जुर्रतमंद नवी नस्ल ने ये आज़ाद करवाना है और ख़ुद अपने ही बलबूते पर आज़ाद करना है, खुद इसके बारे में मुतालिया करना है। ये जो हुक्मरान रवायती चले आ रहे हैं इनका खुद अपना घर ठीक नहीं है और ये हमारे घर के अमन की बात करते हैं। इंतहाई अफसोस होता है और दिल जलता है। हम नौजवान हैं, हम इन रोडों पे आके अपने हक़ाइक़ बयान करते हैं, लेकिन इन हुक्मरानों को ये जो ACU में बैठकर
बिल्कुल मस्त मौजें करते हैं, जिनको इतनी शर्म नहीं आती कि आपकी माएँ बहनें, आपकी नस्ल कुंबे के लोगों के साथ कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। हर बच्ची की इज़्ज़त दाव पे लगी हुई है, हर बूढ़ा मजबूर है। एक बार सोचें तो सही, आपके घर भी बहनें हैं, आपकी भी बेटियां हैं, कैसा गुजरता होगा उन पे जो 73 सालों से पिस रहे हैं सिर्फ किसी नाम पे। कोई कहता है इंडिया, कोई कहता है पाकिस्तान। तो जो कश्मीर है वो जो शायराक बनाए बैठे फिरते हैं, उनको इतना ख्याल नहीं है कि कल आपकी भी इज्जत उड़ सकती है, कल आपके भी घर उजड़ सकते हैं। बहुत बहुत दुख की बात है। और इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द इस पर लाए अमल होगा। अगर तनवीर अहमद को इन जो डायरेक्शन मिली है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, अगर तनवीर अहमद के केस में ऐसे ही डिलेइंग हुई तो हम भी तनवीर अहमद वाला काम करने पर मजबूर ना हो जाएं। उस दिन से आप बाज आ जाएं जब ये नौजवान इतना बेखौफ हो जाए, इतना सरकश हो जाए कि यह आपके गलों तक पहुंचना, हाथ डाल लें, उस वक्त आप छुड़ाना मुश्किल हो जाए। जैसा तनवीर ने काम किया है, हमें उस काम करने के लिए मजबूर ना करें। खुदारा होश के नाखल लें। और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी लोग सोशल मीडिया पे बैठे हुए हैं, अपने दोस्त अजीज, नज़रियाती इख्तलाफात सबके हो सकते हैं, लेकिन उन नज़रियाती इख्तलाफात बैठ कर ही एक दूसरे के हल हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे तनकीद करना, किसी को गद्दार कहना, किसी को जुर्मदार कहना, ये एक इल्म याफ्ता इंसान की ये कोई किरदार नहीं है। हाँ, नज़रियात में फ़र्क हो सकते हैं, हम भी नज़रियात की कदर करने वाले लोग हैं। इंशाअल्लाह ताला जल्द लाए अमल होगा। तनवीर अहमद के हवाले से बहुत तगड़ा लाए अमल होगा और इंशाअल्लाह ताला ये हिस्ट्री भी देखेगी कि इस इंसान ने कुछ काम किया था। और उसके बिहाइंड में जो एक कमेटी बनी है जिसका मैं मेंबर हूँ, उस कमेटी ने जो अगला लाए अमल देना है वो बहुत जल्द देना है और इंशाअल्लाह ताला आपको जल्द पता चलेगा। नौजवान हमारा भाई, हमारा दिलदार आदमी जो वाहिद काशिर है, हम उसको सुर्ख सलाम पेश करते हैं कि उसने अपने हित्ते की आवाज़ को बुलंद किया हुआ है। और जितने भी और मज़ीद बैठे हुए हैं हमारे लोग, बासूल लोग हैं, आपके पास पैसा है, आपके पास कोठी कार है, सब कुछ है, लेकिन एक सोच अपने अंदर डाल लें कि आपका कश्मीरी मर रहा है, आपकी कश्मीरी बहन की इज़्ज़त लुट रही है। आप यूनाइटेड नेशन से आसानी तक रसाई हासिल कर सकते हैं। आप जो हमारे हुक्मरान यहाँ से जाते हैं, इनके बड़े बड़े आप प्रोग्राम करवाते हैं, लाखों डॉलर, लाखों पाउंड आप इनकी जेबों में डाल के हमें भेजते हैं और यहाँ पे काम होते हैं टूटी खंबा और ट्रांसफार्मर। बराए मेहरबानी इसके लिए चंदे ना दें इनको देना है चंदा तो सिर्फ़ और सिर्फ उस कश्मीर को, उन बॉर्डर्स के जो लाइन पे लोग बस रहे हैं उनके लिए आप चंदे डाल सकते हैं। इनको चंदा देना मैं समझता हूँ कि ये हराम की तरफ हमें लेके जा रही है हर चीज़। बसलाम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मेरे इंतहाई अजीज़ दोस्त जनाब नासिर वजह साहब ने इंतहाई मुख्तसर सी कॉल दी है। तो 10 दिसंबर के हवाले से मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये आप बात करें इंसानियत की, यहाँ महज़ब दुनिया की भी बात होती है कि दुनिया बड़ी महज़ब हो गई है जी। तो हर चीज़ जो है, इंसाफ जो है वो बिल्कुल आसानी से मिल जाता है। लेकिन ये सब कुछ आपके सामने है, कश्मीर में जो कुछ हो रहा है मुसलमानों के साथ, उसके अलावा दुनिया के दीगर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, आप शाम देख लें, इराक़ देख लें, बाकी दुनिया के जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ ये जो कहते हैं अपने आप को जो तहज़ीब याफ्ता कहते हैं, ये लोग मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं। तो मैं बात को इंतहाई मुख्तसर करते हुए तो ये जो हमारा ये तनवीर साहब हैं, इनके हवाले से जो बात है कि वो डायरेक्शन आ गई है इंसाफ के हवाले से, जो बात कर रहे थे कि उनके साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अदालतें जो हैं हमारी यहाँ, मैं बदकिस्मती से ये कहना पड़ रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर मैं बोल दूँ तो मेरी ज़ुबान जलती है। तनवीर साहब के साथ जो है ना वो ये अच्छा, वो जिस तरह बाकी हर मामले में ये जो होता है ना डबल माइंडेड या डबल जो होता है स्टैंडर्ड जो होता है वो यहाँ नहीं होना चाहिए। बहुत मेहरबानी। नाचने की आदत, जद्दोजहद का जज्बा दिल से निकल रहा है, जद्दोजहद का जज्बा दिल से निकल रहा है। जश्न नज़ीर खिता रोज़ में ढल